لی ہے، یوں یہ جہاد کا جھنڈا اٹھا ہے۔ جان پہ گزر گئی، مال پہ گزر گئی، گھر چھٹ گئے، آروں سے چر گئے، سولیوں پہ چڑھ گئے، بوٹی بوٹی ہو گئی، تب جا کے اللہ کا کلمہ دنیا میں گونجا ہے۔ عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور روم کے جو قدم اکھڑے اور مسلمان پیچھے آگے بڑھے تو ہشام ابن عاص ان کے بڑے بھائی، بڑے صحابہ میں، وہ شہیدوں کے راستے میں گر پڑے۔ گھاٹی گزرنے کا راستہ جہاں تھا وہاں ان کی لاش گر پڑی، تو سب کے قدم رک گئے کہ ہشام بن عاص صحابی بھی بڑے، امیر کے بھائی۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا، ارے میرے بھائی کی لاش تمہیں آگے بڑھنے سے نہ روک دے، یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، اور خود اس کی لاش پر اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا اور پیچھے سب کو دوڑا دیا، میرے پیچھے آؤ، میرے بھائی کو مت دیکھو، اس وقت اللہ کے دین کو دیکھو۔ جب اس مہم سے فارغ ہوئے پھر لوٹ کے آئے اور ایک ایک بوٹی اپنے بھائی کی اٹھاتے تھے اور بوری میں ڈالتے تھے۔ یہ اسلام یہاں ایسے نہیں آ گیا، ذرا تاریخ اٹھاؤ۔ بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑانا کوئی آسان کام ہے؟ اور چلا دے دیا، ہم مبلغ ہو گئے۔ سال کے 4 مہینے ہم ہیں اسی کام کے لیے، آئے اسی کے لیے ہیں۔ کوئی اور نبی آتا ہو تو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، نبی بھی کوئی نہیں، ہم بھی نہ کریں تو کس سے جا کر گلہ کریں؟ پھر ایمان لے، اور یہی تبلیغ ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اے اللہ تیری بندگی اور تجھی سے سوال۔ یہ سارا مجمع اور سارے پاکستان میں یہ صدا لگائے، بھائی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ، تو 4 کتابوں کی تبلیغ ہو گئی، اجمالی تبلیغ ہو گئی۔ جو اسلام ہم تک ان قربانیوں میں سے گزر کر آیا ہو، ہم اسے چلے لگا کے پھیلانا چاہیں۔ ایک تو بہت بڑا مجمع ہے جو دنیا میں اسلام کے لیے پھرنا اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا، کہ یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا مذاق اڑا دیا، اور صحابہ کی زندگی کا مذاق اڑا دیا، کہ جو گھر سے دور دراز، اب دیکھتے نہیں عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے، الجزائر کہاں، نجد کہاں، الجزائر، یہ کیوں یہاں مرا پڑا ہے، یہ کیوں یہاں دفن ہوا ہے، اس کو کس چیز نے نجد سے اٹھایا؟ تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری۔ وطن کو چھوڑ کر بسکرا کے صحرا میں ابو لبابہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ ابو زمعہ البلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی، وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ رویفہ انصاری لیبیا میں پڑے ہیں، کیوں وہاں گئے تھے؟ عبد الرحمن بن عباس اور معبد ابن عباس کے نشان ہی قبروں کے مٹ گئے، شمالی افریقہ میں ہیں، کس چیز نے وہاں پہنچایا؟ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں ہیں، یہاں کیوں آئے تھے؟ براء ابن مالک تستر میں دفن ہو گئے، یہاں کیوں دفن ہوئے؟ عمر ابن مادی کرب الزبیدی نہامند میں، نعمان ابن مقرن المزنی جن کی شہادت پر حضرت عمر نے فرمایا تھا نہامند کی فتح کی خوشی نہیں ہوئی، نعمان کی شہادت کا غم نہامند کی خوشی سے بڑھ گیا ہے، وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نہامند میں۔ ابو رافع غفاری خراسان میں، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں، ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں، ایوب انصاری استنبول میں، ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں، فضل بن عباس شام میں، خالد بن ولید حمص میں، بلال حبشی دمشق میں، ابو الدرداء دمشق میں، ابو عبیدہ اردن میں، جعفر بن ابی طالب موتا میں، زید بن حارثہ موتا میں، عبداللہ بن رواحہ موتا میں، شرابیل بن حسنہ
दरियाए उर्दुन के नहर उर्दुन के किनारे माज इब्न जबल गौर की पहाड़ियों में, अब्दुर्रहमान इब्न माज बाप बेटा दोनों उर्दुन के पहाड़ों में, ज़रार इब्न अज़वर उर्दुन के पहाड़ों में, उबादा बिन सामित उर्दुन के पहाड़ों में, ये सारी कब्रें बनती चली जा रही हैं और इस्लाम की शमा, उनकी जिंदगी की शमा गुल होती गई और इस्लाम के चिराग जलते चले गए। ये यूं नहीं आलम में फिजाएं बनी, घर उजड़े। अब्दुल्ला बिन अबू बकर, आतिका से शादी हुई, ऐसी खूबसूरत, ऐसी शायरा, ऐसी फादिला कि मोहब्बत ऐसी गड़ गई कि जाना ही छोड़ दिया। बाप ने समझाया, बेटा तू अल्लाह के रास्ते में नहीं जाता। मोहब्बत जंजीर बन गई। आकर अबू बकर ने कहा, तलाक दे दो, तलाक दे दो। अबू बकर जैसा बाप कहे फिर तो तलाक देनी पड़ती है। तलाक तो दे दी, पर सीने पे ऐसा जख्म लगा। याद करते एक दफा लेटे हुए और हजरत अबू बकर गुजरे, इनको नहीं पता कि अबू बकर गुजर रहे हैं। आतिकुला अंसा की मादर शारकुन वमा नाहकुमरिल हमामुल मुतव्वका। ए आतिका, जब तक सूरज निकलता रहेगा तेरी याद भी मेरे दिल में ऐसे ही तुलू और गुरूब होती रहेगी। तो हजरत अबू बकर को तरस आया, कहा बेटा दोबारा निकाह कर ले। दोबारा रुजू कर लिया, लेकिन ये ताजियाना बना। फिर ये कहां जान दी है, ताइफ की पहाड़ियों में सीने पे तीर लगा और वही जख्म रिश्ते 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 मौत का सबब बना। पहले अब्दुल्ला के शेर थे, अब आतिका बेकरार हुई। आलैतु ला तनफक्कु ऐनी हज़ीनतन वला यनफक्कु जिल्दी अहबरा। मैं भी कसम खाती हूं कि आज के बाद मेरी आंख का पानी कभी खुश्क ना होगा और मेरा जिस्म कभी नरम कपड़ा नहीं पहनेगा। 30 बरस की उम्र में वो गए। जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काफिरों ने घेरे में ले लिया। तो शैतान ने कहा, मासूम बच्चे हैं, भाग जा। छोटी बीवी है, जवान बीवी है, भाग जा। एकदम उतरे और पहले घोड़े को कत्ल किया ताकि पीछे जाने का रास्ता बंद हो जाए। या हब्बज़ल जन्नत वक़्तिराबुहा, जन्नत को याद करते हुए आगे आगे आगे। एक हाथ कटा, दूसरा कटा, 2 टुकड़े हुए और आपने फरमाया वो जाफर गया और जन्नत में दाखिल हो गया। मुसीबत की घटाओं में ये इस्लाम उठा है। आजमाइश की घाटियों से गुजरकर ये कलमा हम तक पहुंचा है। छिले 4 महीने का किस्सा नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये सारा मजमा पता नहीं कितना है, अल्लाह ही जाने कितना है। अगर हम सब आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें कि या अल्लाह तुझे नाराज किया, माफ कर दे। तेरे काम को ना हमने दुनिया में उठाया, हमें माफ कर दे। आज हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं। अगर आप और मैं, हम सब अगर आज तौबा कर लें तो इस पूरे दुनिया की तकदीर के बदलने के लिए इतना मजमा काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अरे मेरे भाइयों, यही काफी हैं। पर कुछ ऐसे हों जो अल्लाह पाक को दिखा दें कि अल्लाह तू देख हमारे अंदर को, हम तुझ पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। जैसे अनस बिन नजर ने कहा था, ए मेरे मौला, बदर से तो रह गया, अब जब भी कोई मौका आया तो तू देख लेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं। तो भाइयों, सब के सब हम आज अल्लाह की बारगाह में तौबा करें कि या अल्लाह, सफारत का काम मिला, दुनिया को रहबरी का काम मिला, दुकानें ही खोल के मस्त हो गए, जिम्मेदारियों में ही मस्त हो गए। तो मेरे भाइयों, आज दिल ही दिल में आप सारे भाई तौबा करें अपने गुनाहों पर भी और इस बड़े जुर्म पर भी कि इस्लाम फैलाने को अपना दर्द नहीं बनाया। एक दरख्त मुरझा जाए तो जिम्मेदार की तबीयत जमीन पे जा गिरती है। एक कपास का पौधा फल न ले तो अल्लाह की कसम उसका मिजाज बदल जाता है। सारे आलम में इस्लाम के पुरखे उड़ गए और हम अपने शादियानों में, और इस्लाम मिट गया, और हम अपने कारोबारों में। तो मेरे भाइयों, हम इससे तौबा करें कि या अल्लाह, हमारी तौबा हमें माफ कर दे। आज के बाद वो होगा जो तू चाहेगा, और ये तमन्ना हो कि या अल्लाह, हम घरों में ना मौत आए, हमें तेरे रास्ते में मौत आए। हम फिरते 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 अल्लाह के पैगाम को लेकर, अरे मेरे भाइयों,
उन लोगों की आंखों में आंखें चार होने के दिन करीब आ रहे हैं और उनके सामने रसूलुल्लाह के सामने खड़े होने की घड़ी दिन ब दिन करीब आ रही है। हम सोचें तो सही, जब अल्लाह के रसूल का सामना होगा और उन्होंने यही एक सवाल कर लिया कि तुमने मेरे दीन के लिए क्या किया, तो मौत भी तो कोई नहीं कि मर जाएं और छुप भी तो नहीं सकते कि कहीं जाके छुप जाएं, ना छुपने की जगह ना उज़र की जगह, तो कोई जवाब तो तैयार करके मरे, कोई जवाब तो तैयार करके मरे कि मेरे मौला ए या रसूल अल्लाह, हमने तेरे काम को, आपके पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए जितना हम कर सकते थे हमने किया, पर हम तो बिगाड़ने वाले थे। हम क्या करते, हम बनाते हुए भी बिगाड़ते चले गए, हमारा बनना भी बिगाड़, हमारा बनाना भी बिगाड़, हमने भूंडी नकल उतारी थी। ए अल्लाह तू आज कबूल कर ले। तो मेरे भाइयों, कुछ पल्ले लेकर मरें, ये खाली हाथ न मरें। इसलिए आज सारे भाई अल्लाह के वास्ते तौबा करें। क्यों भाई, तौबा की नीयत है भाई। सारा ये मजमा जहां जहां बैठा है 18 हलकों में, जिस जिस स्पीकर के सामने बैठा है, आज अल्लाह के वास्ते उसके सामने 2 आंसू बहा दो। ए अल्लाह माफ कर दे। आज हम तेरे नाम को दुनिया में बुलंद करेंगे, तेरी तारीफ के गुण गाएंगे और यही कहते 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 इतना कहेंगे कि या हमारे सांस के तार टूट जाएं और या लोगों के कानों के पर्दे खुल जाएं, या हमारी जिंदगी की शाम हो या कुफर की शाम हो। इसको तय करो कि हम घरों के नहीं, मुल्तान, लाहौर, कराची, तुलंबा, खानेवाल, फैसलाबाद, ईरान तुरान के नहीं हैं। हम तो इस जमीन में अल्लाह के नुमाइंदे हैं और अल्लाह के पैगाम को लेकर फिरना हमारी ड्यूटी है, काम है। करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, चलते जाएंगे। जहां कहीं जिंदगी की शाम होगी वहीं मिट्टी की चादर में सो जाएंगे। और एक दिन अल्लाह फिर क़यामत के दिन जब हशर होगा, बेशक हमारे पास कुछ नहीं, कोई एक अमल दिखाने का नहीं, नकल जरूर होगी। नकल, अल्लाह से बड़ा करीम कोई नहीं, उससे बड़ा मेहरबान कोई नहीं जो मग़फ़िरत के बहाने तलाश करे। अगर हमने नकल भी उतार दी और इसमें कामयाब हो गए तो ये नकल ही असल का मकाम ले जाएगी। हशर के मैदान में एक आदमी की एक नेकी कम पड़ जाएगी, अल्लाह फरमाएंगे एक ले आ, माफ करता हूं। वो सारा जग ढूंढ मारेगा पर कोई नेकी देने को तैयार न होगा तो परेशान होगा कि हाय मर गया। एक आदमी मिलेगा, क्या हुआ भाई, कहेगा एक नेकी से मार खा रहा हूं। का फिक्र न कर, अबशिर मैं तुम्हें देता हूं। का तुम क्यों देते हो, का मेरी है ये एक, मेरे किस काम की, जा तेरा तो भला हो जाए। वो भाग के आएगा, या अल्लाह मेरा काम बन गया। कैसे बन गया, उसने दे दी, उसे बुलाओ, वो भी आएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे आज तो कोई देने को तैयार नहीं, तू क्यों तैयार हुआ। वो कहेगा या अल्लाह मेरी तो एक थी, मेरे तो किसी काम आने की ना थी। मैं कहा तेरे बंदे का ही भला हो जाए। तो अल्लाह ताला कहेगा अच्छा तू आज मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है, आज मुझसे बड़ा सखी कोई नहीं है, चल तू भी इसके साथ ही चल, दोनों ही जन्नत में जाओ। अरे ये हम नकल उतार ले, नकल अगर नकल भी लग गई तो कल अल्लाह बड़ा कदरदान है, बड़ा कदरदान है। इस गए गुजरे दौर में अगर हमने नकल भी उतार ली तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी आखिरी दरखास्त है, ये इतना बड़ा मजमा है और ये 18 हलके हैं, हर हलके से एक 1000 आदमी चाहिए। 18,000 आदमी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।